हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन अवार साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, द थ्री ऑर्डर, क्लास 11th हिस्ट्री हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव इज इंपॉर्टेंट हियर। Why did the Europe's economical progress slow down by the early 14th century? Give a reason. You know that is an important question. Why did the Europe's economics progress slow down by the early 14th century? Give the reason. The Europe's economical progress slowed down due to the following reason. First of all, reason here, the warm summers of the last 3 years had given way to the batteries called summer in the northern Europe. By the end of 30th century, it's become quite difficult to grow crops on higher ground, and storm and flood destroyed their entire crops here, and which result into the less income in a taxes for government. You know that is important. 14th and 30th century, their 3 years has been given to the battle cold summer for the northern Europe. And the reasons here, difficult to the grow of crop and higher ground. And the most important reason here, a storm and flood destroyed their entire crops. That's important. And less income to taxes for the government. That's important. Economical progress slowly down over the 14th century here. The next year, before the 13th century, the climatical condition had led to be a large-scale reclamations of land of forest and pasture for the agriculture. Intensive plugging had executed the fertility of soil. The storage of pasture reduced the number of cattle, and European was hit by the severe famine between to the 1315 and 1317. By the 1320s, there is occurred a massive cattle deaths here. That's important point here. There is the occurred massive cattle death here, and trade was hit by the severe shortage of metal money because of a shortfall in a silver mine in Austria and Siberia. It forced the government to reduce the silver content of currency and to be mix it with the cheaper metals here. With the expansion of trade in the 13th and 14th century, ships carrying goods from the distant countries had started to the arriving in the European ports here. Along with the ships come rats with the deadly bubonics and plague infections. The Black Death.
You know that plague infections has a most important for this time, and there is called Black Death. Western European was isolated in the earlier century, but was hit by the epidemic between the 1347 and 1350 here. That's an important point here. There is a Black Death on this time. There are ships come the rat with a deadly bubonic plague infection spread in the Western Europe here. As a result, the trade center and cities were hit. In an enclosed communities like Mustarius and Convent, when the individual is contracted the plague, a lot of people got affected to it. The plague took its world toll among their infant, their young and elders. That's an important point. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 वर्ग क्लास 11th हिस्ट्री यानी कक्षा 11वीं का जो इतिहास का यहाँ पर है क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप की आर्थिक प्रगति धीमी क्यों हो गई। ये बहुत बड़ा कारण है। देखा जाए तो 14वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप की आर्थिक जो है प्रगति धीमी हो गई। तो कोई कारण हो सकता है, तो उन्हीं कारणों पर यहाँ पर जो है हमने विश्लेषण करने हैं, समझनी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहने वाला है। यूरोप की आर्थिक प्रगति निम्नलिखित कारणों से धीमी हुई। तो पहली कारण तो यही होती है कि पिछले 300 वर्षों जो है गर्मियों ने जो है 13वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी यूरोप में कड़ाके की ठंडी गर्मी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था और ऊंची भूमि पर फसल उगाना काफ़ी कठिन हो गया था। इवन तूफान और बाढ़ ने सारी फसलें नष्ट भी कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों के रूप में आय कम हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि पिछले 300 वर्षों की गर्मियों ने 13वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी यूरोप में कड़ाके की ठंडी गर्मी के मार्ग प्रशस्त कर दिया था और ऊंची भूमि पर फसल उगाना काफ़ी कठिन हो गया और तूफान और बाढ़ ने सारी फसलों को नष्ट भी कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों के आय में कम भी करना पड़ा। अब देखिए, जब फसल नष्ट हो जाता सरकार उस पर ज़बरदस्ती कर नहीं लगा सकती, जिसके कारण 14वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ही आर्थिक प्रगति धीमी हुई। तो ये सबसे बड़ा कारण था गर्मी का प्रकोप। दूसरी बात यहाँ बताता है कि 13वीं शताब्दी से पहले जलवायु परिस्थिति के कारण कृषि के लिए जंगलों और चरगाहों की भूमि का बड़े पैमानों पर पुण्य ग्रहण हुआ था। यानी देखा जाए तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कारण बनता है कि जलवायु परिस्थिति के कारण कृषि के लिए जंगलों और चरगाहों की भूमि पर बड़े पैमाने पर जो है पुण्य ग्रहण हुआ था और सघन जुताई से मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो गई थी। चरगाहों की कमी ने मवेशियों की संख्या कम हो गई। चरगाहों की कमी देखिए, अगर चरगाहें कम होगा तो मवेशियाँ भी कम होंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी फैक्टर बनी थी इस समय कि देखा जाए सघन जुताई से मिट्टी की उर्वरकता जो है समाप्त हो जाने के कारण चरगाहों की कमी हो गई, जिसके कारण मवेशियों की संख्या भी कम हो गई। और 1315 और 1317 के बीच यानी 1315 से लेकर 17 के बीच के यूरोप में भयंकर अकाल की चपेट में आ गया और ये अकाल बहुत ही दुखदायक थी। कहते हैं 1320 के दशक तक बड़े पैमानों पर मवेशियों की मौत हुई। तो कहते हैं उस समय सभी लोग मवेशियों पर ही आश्रित थे और मवेशियों की इतनी संख्या में मौत होना बहुत बड़ी दुर्घटना का जो है चालक बन गया था। देखा जाए तो ऑस्ट्रिया और साइबेरिया में चांदी की खदानों में कमी के कारण धातु मुद्रा की भारी कमी से व्यापार प्रभावित हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रिया और साइबेरिया में चांदी की खदानों में कमी आने लग गई, जिसके कारण व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ और सरकारों को मुद्रा में चांदी की मात्रा कम करने और सस्ती धातुओं के साथ मिलाने के लिए मजबूर किया। और देखा जाए तो मुद्रा में चांदी की मात्रा कम होना भी उस समय अर्थव्यवस्था को जो है धराशायी कर दिया। इवन देखा जाए तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में व्यापार के विस्तार के साथ सुदूर देशों ने माल जो है लेकर जहाज यूरोप बंदरगाहों पर पहुंचने लग गए थे और जहाज़ों के साथ घातक बुबोनिक प्लेग संक्रमण यानी ब्लैक डेथ वाले चूहे भी आए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जहाज़ों के साथ घातक जो है बुबोनिक प्लेग संक्रमण जो यहाँ पर आ गए और ऐसे ही चूहे बहुत से जो है यूरोपीय बंदरगाहों पर पहुंच गए। जैसे पिछली शताब्दी में पश्चिम यूरोप अलग अलग था, लेकिन 1347 से 1350 के बीच महामारी की चपेट में आ गया। तो देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना प्लेग, जिसका क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे प्लेग के अंतर्गत।
इसका परिणाम क्या हुआ कि व्यापार के अंदर शहर प्रभावित हुए। मठों और कॉन्वेंट जैसे बंद समुदाय में भी जब एक व्यक्ति प्लेग से संक्रमित होता था तो उसे बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो जाते थे। प्लेग ने शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। तो देखा जाए तो ये समय काल काफ़ी जो है संकटों का समय काल था, क्योंकि चार तरफा जो है यहाँ पर अटैक हुआ। बीमारी ने तो अटैक किया ही किया, प्लस खदानों की सोना ख़त्म हो जाना, प्लस देखा जाए तो यहाँ पर जो है मवेशियों के चरगाहों का न होना, ठंड का अधिक पड़ना, ये सारे कारण जो थे 14वीं शताब्दी के शुरुआती में अर्थव्यवस्था को जो है धराशायी करने के लिए पर्याप्त कारण बने। तो ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण थे एग्ज़ाम व्यू से, और ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए जो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, कहते हैं जितना शेयर कीजिएगा दूसरे बच्चों से उतना दूसरे बच्चों का भी भलाई होगा। अपनी भलाई के साथ जो दूसरा का भलाई सोचता है वही इंसान कहलाता है। कहता है इंसान वो इंसान होता है जो इंसानों के लिए मरे, वो इंसान नहीं होता जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ सिद्ध करे। इसलिए इंसान बनने का सबसे महत्वपूर्ण यही होती है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर बन सकता है। और मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा ये उठाया गया कदम आपको उस बच्चे के नज़रों में ऊंचा उठा देगा। ये विश्वास नहीं, यकीन है, क्योंकि ये किसी को ये मदद का एक संकेत हो सकता है। इसलिए जितना हो सके शेयर करने की भावना आपके मन से निकलना नहीं चाहिए, तो शेयर कीजिए। और कभी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, स्किप करके ना देखें, आगे बढ़ा के ना देखें, नहीं तो वीडियो की गुणवत्ता अधूरी रह जाती है, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और वीडियो बने और वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिले, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है यहाँ 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है, जहाँ पर आप सभी वीडियो देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। चलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी 53 को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।